आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। The National People's Party of Arunachal Pradesh is profusely thankful to the people of Arunachal Pradesh, the most intelligent voters, the most respected electorates, the senior citizens, office goers, and the general public for recognizing the ideologies, the philosophies, the commitments and manifestos of the National People's Party of Arunachal Pradesh, and thereby supporting our candidate in the recently concluded assembly election in the state of Arunachal Pradesh. We are also thankful to the young generation, the youths of the state of Arunachal Pradesh who have supported the NPP party and make our party popular in the state of Arunachal Pradesh. Today we had a reception meeting, and a felicitation of the newly elected and a designated MLA of the NPP party. In my right side, Sri T. Daran Sahab, he is from 38 Pasigat East. Sri Namge Singh ji, he is from the 2 Tawang Assembly Asti constituency. And in my left side, Sri Oni Paing ji from the Marian Gegu Assembly constituency, and the most dedicated leader, the formerly officer of the state of Arunachal Pradesh, Sri P.C. Jilanji, who represented the constituencies, 27 Liromaba constituencies. Today, the state office bearers and the NPP parties, they have received us, they have facilitated the newly designated MLAs of the NPP party, and while this giving a facilitation program to the newly elected party, we have taken an opportunity to appoint the NPP legislature party leader, who is myself, Thamam Waham. I am profusely thankful to my newly designated MLAs, the 4 MLAs for supporting me as the legislature leader of the NPP party. And we have also appointed the chief whip of the National People's Party, and the party organization, the state party office bearers, they have proposed the name of Sri P.C. Jilan, the newly elected designated MLA, as the chief whip of the party. So while doing all this thing, we have discussed how to promote, how to strengthen the party, and we have also decided to constitute the block level executive committee, the village level executive committee, and district level executive committee to be begin from the elected MLA constituency, 5 constituency. The committee should be constituted very soon, and by the end of July and August, after that we will go ahead with the neighboring constituencies, the constitution of the block as well as the district committee in all the constituencies. So the NPP, so that the NPP will progress
we will strengthen the party at a grassroots level, and we hope the people of Arunachal will accept and recognize the NPP party. So this is the gist of today's meeting that we have conducted, that we have discussed. Now I invite the media fraternity will give thanks to you all. Profusely thankful to you all to know anything and to ask anything if you have to inquire from the National People's Party of Arunachal. वांगम साहब, सबसे पहला सवाल है कि बहुत अच्छा लगा ये इमर्ज सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी इन अरुणाचल प्रदेश इन 2024 इलेक्शन। लेकिन सब लोग जब विधानसभा में आता है तो कोशिश करता है कि हमारा पार्टी बहुमत आए या तो अलायंस गवर्नमेंट बने। आप लोग भी कोशिश कर रहा है, आप लोगों का पार्टी में अलायंस पार्टनर है बोला, नेडा में है, एनडीए में है बोला, तो क्या लगता है कि आप लोगों का पार्टनरशिप बीजेपी का साथ चलेगा ना ऐसे चलते रहेगा, ना आप सरकार में भी शामिल होने का कोशिश करेगा, ना आप लोगों को लेगा ना नहीं लेगा? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। एनपीपी अंडर द बैनर, अंडर द पैरामीटर ऑफ नेडा, नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस का तहत हम एनपीपी एक बीजेपी के साथ एक अलायंस है। हाँ, गवर्नमेंट में हम शामिल होने के लिए हम अलायंस करके रखा है। इलेक्टोरल फाइट वो अपना अपना बैटल हिसाब से, इलेक्टोरल बैटल तो अपना हिसाब से करता है, लेकिन आफ्टर इलेक्शन उसको पोस्ट अलायंस में रखता है हम लोग। और डेवलपमेंट के लिए, पीपल्स इंटरेस्ट के लिए हम पार्टनरशिप करता है, आज तक ऐसे करके आया। लेकिन आपका सवाल का अनुसार वो हमको माने नहीं माने वो तो उनका काम है, दैट हमें मालूम नहीं। वो हमारे साथ हमको रखेगा या नहीं रखेगा। हमारी मैंने बहुमत में आया है 46 ना 44 46 आया है एमएलए, तो उनका मर्जी हमको रखेगा नहीं रखेगा। हम जबरदस्ती भी एंकरिंग नहीं कर सकते कि हमको रखो, ये हम नहीं बोल सकता है, और हमको मत रखो भी नहीं बोल सकते। लेकिन हमारा नेडा का जो मैनिफेस्टो, नेडा का जो रेजोल्यूशन का अनुसार हम एक पार्टनर है डेवलपमेंट के लिए। इलेक्शन तो अपने हिसाब से जीतो हारो, लेकिन डेवलपमेंट के लिए, स्टेट के हित में, स्टेट का डेवलपमेंट के लिए हम एक पार्टनर है। अभी वो 46 आ गया, 50 आ गया, हमको नहीं लेगा अगर बोल देता तो हम क्या कर लेगा? कोई बाइंडिंग तो नहीं है हमारा पास, कोई ऐसे एक्शन लेने का कुछ तो नहीं है उनके पास, वही है बर्डन। हाउएवर ये जो चीज़ है, आई एम नॉट द फाइनल अथॉरिटी। हमारा जो हाई कमान है, नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी पार्टी का जो हाई कमान है, हाई कमान से इसका डिस्कशन होगा, तो बीजेपी का हाई कमान एंड एनपीपी हाई कमान बात करेगा, उसमें सरकार में हमको रखेगा, जोड़ेगा या नहीं जोड़ेगा। और जस्ट एज मैंने हमको वरांडा में रखेगा ना बेडरूम में रखेगा, वो उनका बीजेपी हाई कमान एंड एनपीपी हाई कमान, लेट देम डिस्कस। तो हम अब 5 एमएलए अभी पंडित जी से, नेशनल प्रेसिडेंट से मिलेगा, उसका बाद में उनका एडवाइस में ही हम चलेगा। एंड दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर अस टू कमेंट कि हम बीजेपी के साथ है, साथ नहीं है, नहीं है भी हम नहीं बोल सकते, साथ है भी हम नहीं बोल सकते। क्या बोलेगा हमारा हाईकमान को नहीं। इसलिए आपका जो सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, फिर भी इतना में हम मेरा जवाब। दूसरा एक था कि बहुत कोशिश किया था आप लोगों ने कि 60 का 60 सीट फिलअप करने का, लेकिन फिर भी प्लानिंग हुआ 30, टिकट मिला 20, आया 5, 15 ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो लोगों को किस तरह से देखते हैं कि क्या कहीं कमजोरी रह गया था, ना चैलेंज ज़्यादा था? इसमें एनपीपी पार्टी का कोई कमी नहीं है। एनपीपी पार्टी अभी भी एकदम स्ट्रॉन्ग लीडर है। जितना भी जो कंटेस्टेड कैंडिडेट है, जो सक्सेस नहीं हो पाया, दे आर ऑल्सो अपना अपना जगह में ग्रेट लीडर है। वी आर नॉट अ मियर पॉलिटिशियन, वी आर अ बिग लीडर। लीडर थिंक्स फॉर द नेक्स्ट जनरेशन एंड द पॉलिटिशियन थिंक्स फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन। हम केवल इलेक्शन के लिए सोचता नहीं है, हम जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन के लिए सोचता है। हमारा जो डिफीटेड, जो अनसक्सेसफुल नेरोली अनसक्सेसफुली जो कंटेस्ट किया, दे आर ऑल्सो हियर विद अस। नेक्स्ट टाइम हम
जीतेंगे और हम पब्लिक के लिए, जनता के लिए काम करेगा। वी आर जस्ट नॉट अ मेयर पॉलिटिशियन। ये जो हमारा कोई कमी नहीं है, बस इतना हो सकता है कि दोज इन पावर, जो लोग पावर में है, तो बोल रहा था मनी पावर नहीं करेगा, पैसा नहीं चलाएगा, लेकिन वो पैसा चला दिया। पैसा चला तो वो लालच तो ऐसी चीज है ना, एवरीबॉडी तो लालच का गुलाम होता है। एवरीबॉडी, एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ लालच का गुलाम। जो पैसा दिखाएगा तो पैसा ने पत्थर को तोड़ सकता है, पानी में आग जला सकता है पैसा, और गोली भी वापस जाता है पैसा में। तो ऐसे हो गया होगा हमारा वोट, तो वो है। अदरवाइज हम में कुछ कमी नहीं है। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा बोला सर आपने। दूसरा एक सवाल था कि आप लोकलिंग से बिलोंग करते हैं, आप खुद भी एक जीत के आया इलेक्शन होकर के, कैसा रहा था आपका चुनाव? आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर कीजिए, हालांकि आप पूर्व में भी मंत्री रहे हैं। मेरा जो लोंगडिंग का, मेरा लोंगडिंग तो पीपल्स ऑफ लोंगडिंग बहुत अच्छा है, एकदम ट्रू डेमोक्रेटिक। वहाँ के जो लोग हैं ना, वो पैसा रुपया में मना सकता नहीं, लालच का गुलाम नहीं है हमारा पब्लिक ना, लालच का गुलाम नहीं है। वो दे हैव डिसाइडेड कि हमको कमबैक लाएगा। लेकिन आप पैसा का गुलाम नहीं बोलता। आपका डिस्ट्रिक्ट में तो 1 करोड़ सीज हुआ था, मेरा डिस्ट्रिक्ट में रिकॉर्ड वायलेशन का। मेरा डिस्ट्रिक्ट में 1 करोड़ किसका सीज हुआ हमको मालूम नहीं। हाँ, वो जो पैसा रिलीज सीज जिसका भी हुआ होगा, वो बीजेपी का हो सकता है, कांग्रेस का भी हो सकता है, पीपीए का भी हो सकता है, एनसीपी का भी हो सकता है, एनपीपी का भी हमने मालूम नहीं है। लेकिन हमारा साइड से मेरा जो एक ही कैंडिडेट है, कहाँ हम हमारा से हमसे कोई पैसा सीज नहीं हुआ। हमारा पास पैसा है ही नहीं है। कहाँ का पैसा? हम तो बस पब्लिक का प्यार से जीता है। आई एम थैंकफुल टू पीपल ऑफ लोंगडिंग, 59 लोंगडिंग कंस्टिट्यूंसी। वहाँ का लोग जो है ना, लीडरशिप को चाहिए, लीडरशिप को। वो दे वांट परफॉर्मेंस, दे वांट लीडरशिप। तो वो जो लीडरशिप हमने दिया लास्ट 15 ईयर्स में, वो जो परफॉर्मेंस हमने दिया, तो उसको लेके वो कमबैक लाए लोग ने। और लोंगडिंग में एक हिस्ट्री है कि डिफीटेड, हारा हुआ एमएलए कभी वापस नहीं आता। तो ये जो कमबैक आज हमने फर्स्ट लोंगडिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्रिएट किया है, ये हमने नहीं किया, ये पीपल्स, मेरा जनता ने, मेरा पब्लिक ने किया। आई सैल्यूट देम, आई रेस्पेक्ट देम। They could recognize the real leader, the true leader, the performing leader, which is me. So I will try myself to live up to their expectation. उनका expectation तक, उनका सपना को पूरा करने के लिए, उनका विचार सोच को पूरा करने के लिए, I will try my best, and I will try to be an ideas merchant, a dream merchant. I will try to create the pathway for their development. सर, वन क्वेश्चन, आपने बोला कि एमपीपी पार्टी के कुछ कमी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से एक चीज़ कमी है, वो है यू हैवंट पुट एनी फीमेल कैंडिडेट फ्रॉम योर पार्टी। तो इस पे आप क्या जवाब देना चाहोगे? हाँ, वही ना प्रॉब्लम, एमपीपी पार्टी में कोई कमी नहीं है, लेकिन फीमेल में जरूर कमी होगा क्या? क्योंकि फीमेल आगे बढ़ के नहीं आया है, तो हम क्या करें? फुटबॉल होने से तो जबरदस्ती खिलाना था, बास्केटबॉल होने से भी चलो खिलाना था। ये इलेक्शन में तो जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता है, तो फीमेल कोई आया नहीं। इसीलिए सॉरी, अरुणाचल के जो माताओं, आपका जो फीमेल है, वुमेन है, आप कभी किसी से कम नहीं है। आप आगे आइए और एनपीपी के साथ जोड़िए, और हम आपको सपोर्ट करेंगे। हम आपको डेस्टिनेशन दिखाएगा, दिशा दिखाएगा, और अरुणाचल की हित में हम लोग सब मिलकर आगे बढ़ेगा। थैंक यू सर, एनपीपी के फेवरेट कैंडिडेट्स थे, गोपाल बसार हो या यश सेवक हो, और जैसे कि एक सिटी जो मिनिस्टर है, जिनको सीएम ने अनाउंस किया कि नीरोमोपा में मिनिस्टर दिया जाएगा, उनको हरा के आपके कैंडिडेट आए, तो किस प्रकार सबसे टफ फाइट कहाँ मानते हैं? 29 कैंडिडेट्स में सबसे ज़्यादा बीजेपी को टफ फाइट देने वाले कौन? बीजेपी को टफ फाइट देने वाला ये साहब का जगह है, पीसी जलन। हाँ, पीसी एंड जलन बहुत बढ़िया आदमी है। इनको तो 2001 से एमएलए बन चुका था ये ना, 2021 से एमएलए बना चुका था पब्लिक का दिल से। हाँ, जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए कंटेस्ट किया। इनको पब्लिक वोट चाहता है। हाँ, लेकिन वहाँ में पूरा पैसा का ऑटोम बम मारा वहाँ पे।
दाल चावल का, कंबल का, क्या क्या सामान का पूरा रॉकेट मिसाइल मारा वहाँ पे दोस्त हुआ इन द पावर। तो इतना जो स्टेट एक्सचेकर को खाली ही कर दिया वहाँ पे लेरोमोबा में, इतना जो है हुआ है इलेक्शन मैंने पूरे जो इमोशनली पूरा ये आगे सब। फिर भी इनका जो लेरोमोबा 27 लेरोमोबा, इनका जो कंबा का जो लोग है, ये कंबा से है ना, लेरोमोसा है, मोबासा है और कंबा से, इनका जो जनता है रियली आई रिस्पेक्ट देम। इतना मैंने कमिटेड है ये साहब को बनाने के लिए। तो अच्छा फाइट दिया वहाँ पे, वही है। सेपा वेस्ट और दिरांग में भी काफी फाइट। हाँ, सेपा वेस्ट और दिरांग में भी काफ़ी अच्छा फाइट दिया लोहा साहब था। तो वहाँ भी बढ़िया फाइट दिया, लेकिन वहाँ में तो सेपा वेस्ट में थोड़ा सा अन्याय हो गया है। उसमें एनपीपी पार्टी जीत चुका था, हाँ जीत चुका था, वहाँ में वोट कैप्चरिंग हुआ है, एकदम ओपनली खुला खुली वोट कैप्चरिंग हुआ है। लेकिन वो वोट कैप्चरिंग में पुलिस केस भी हो गया था, FIR भी हो गया था, उसमें जो वोट कैप्चरिंग जिसने किया उसका अरेस्ट भी हो गया था। लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, लेकिन वहाँ का डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने और यहाँ का स्टेट इलेक्शन ऑफिसर ने सपोर्ट नहीं किया, और ये ECI के पास, ECI तक इस चीज़ को पहुँचाने में ये लोग ने सपोर्ट नहीं किया। तो ये जो चीज़ वोट कैप्चरिंग जहाँ हुआ है वहाँ पे नल एंड वॉइड कराने के लिए हम लोग ने एनपीपी पार्टी से लिखा था, कैंडिडेट से लिखा था, लेकिन ECI ने उसको नल एंड वॉइड नहीं किया। अगर वो नल एंड वॉइड करने से हमारा सेपा ईस्ट ना, सेपा वेस्ट से हमारा तानी लोफा साहब ऑनरेबल एक्स MLA, तो वो इस बार मैंने MLA बन के आना था। बहुत बढ़िया से हम लोग मतलब फाइट किए। तो सर पहला चुनाव तो आप लोगों ने पार कर दिया, और दूसरा चुनाव ये है कि आप लोग डेवलपमेंट कैसे लाएगा, क्योंकि पिछले चुनाव में जो इलेक्टेड कैंडिडेट्स हम लोग देख रहे हैं वो नहीं है, अभी अब लोग सब नया है। और पिछले चुनाव का जो लीडर लोग था उसमें कुछ किसी का मीडिया में भी ये बयान आया था कि अपोजिशन में रह के फंड मैनेजमेंट बहुत तकलीफ होती है, उन लोग किसी भी OTP का जो टिकट है उनको भी नहीं ले रहे, जो उम्मीदवार भी नहीं उतार रहे। इस बार आप लोग किस प्रकार से अपना फंड मैनेजमेंट करेंगे, पब्लिक को कैसा भरोसा दिलाएगा नहीं कि MPP कुछ कर सकता है, क्योंकि आप फॉर्मर आप मिनिस्टर भी रह चुका है। वो कैसे करेगा, हम अगर पूरा आपको बता देगा अभी, वो तो थोड़ा हमारा पॉलिसी में इतना अच्छा नहीं होगा। वो कैसे करेगा तो हम नहीं बोल सकता है, क्या हम बोल सकता है, कब हम बोल सकता है, कैसे हम नहीं बोल सकता है। आई कैन टॉक अबाउट व्हाट व्हेन बट नॉट अबाउट हाउ। तो अपना मतलब करेगा, और हमारा परफॉर्मेंस तो देख लीजिए पब्लिक, हम करेगा उसमें। क्योंकि ये जो आपने जो बताया ना कि एनपीपी को पैसा नहीं दे, क्यों नहीं देगा? एनपीपी किसी का बाप का पैसा है क्या? ये सिटीजन का पैसा है, बराबर का हिस्सा होना चाहिए इसमें। एनपीपी को क्यों पैसा नहीं देगा? किसी का पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का पैसा है क्या? ये किसी का बाप का मतलब एंसेस्टर प्रॉपर्टी है चाहिए। दिस इज द मनी फॉर द सिटीजन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा सब में। और अगर नहीं होता है तो हम आवाज देगा। देखिए, इसलिए ये सब जो सवाल है ना, अभी ये मीडिया में नहीं हो गया, अच्छा से बैठ के बात करना चाहिए। लेकिन आप तो पूछ दिया, अभी ऑनलाइन है, आप तो बता दिया। सर इसलिए पूछ रहा हूँ कि CM ने ड्यूरिंग कैंपेन ओपनली बोला है कि बीजेपी को जो वोट देगा वो ठीक है, लेकिन जो नहीं देगा वो टाइट करेंगे। बोलना दो, ये वोट के लिए बोला है। पॉलिटिक्स इज नॉट, पॉलिटिक्स कैन नॉट बी अलग फ्रॉम मोरालिटी एंड ये वोट के लिए बोला होगा। लेकिन गवर्नेंस, अगर कोई भी CM होता है तो अच्छा गवर्नेंस करने के लिए कोशिश करेगा, वो कभी ऐसे बात नहीं करेगा। इसलिए ये चीज़ आप लोग डिस्कस करके उसको इनकरेज नहीं करना चाहते। सर अगर डिसीडेंट ग्रुप बना CM रेस के लिए, हाँ। कोई डिसीडेंट ग्रुप अगर फॉर्म हुआ CM रेस में, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे अलग पार्टी में? ये आप क्यों पूछता है ऐसे वाला? हो सकता है। नहीं, आप लोग 5 MLA ये अभी मत बोलो। डिसीजन क्यों होना है बीजेपी के अंदर? ये बीजेपी के ये कोई जरूरी है कि हमेशा डिसीजन होना पड़ेगा? बीजेपी में अरे आप लोग सपोर्ट करेंगे उस ग्रुप? एवरी टेन्योर में डिसीजन होना पड़ेगा, क्या जरूरी है क्या? अरे 46 MLA आ चुका है, आप लोग बोल के डिसीजन करा देता है, बोल के मतलब डिवाइड करा देता है।
ऐसे मत करो। ये सब अभी दिस इज नॉट अ थिंग राइट टाइम टू डिस्कस, ये सब डिस्कस नहीं करना चाहिए। और ये सवाल जो है बीइंग अ जर्नलिस्ट ये सब नहीं पूछना चाहिए। हाँ। अच्छा जर्नलिज्म करो। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।